کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ وزیرآباد میں بین المذاہب ہم آہنگی برائے امن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام استحکام پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ منڈی بہاؤدین میں محرم الحرام کے پیش نظر ڈی پی او عمر سلامت کی قیادت میں پولیس دستوں کا فلیگ مارچ۔ محرم الحرام میں امن و امان کے لیے 1500 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ توبہ ٹیکسنگ میں انسداد ڈینگی مہم کے سلسلے میں محکمہ تحفظ ماحولیات کی کارروائی۔ متعدد ٹائر شاپس کو سیل کر دیا گیا، نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ چشتیہ میں انسانی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن، مضر صحت گھی بنانے والی فیکٹری کو سیل کر دیا گیا۔ فیکٹری میں مرغی کے پنجوں اور آنتڑیوں سے گھی بنایا جاتا تھا۔ حیدرآباد میں محرم الحرام کی آمد سے قبل سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے کے لیے رینجرز کی کارروائی۔ ریلوے اسٹیشن پر پنجاب اور پشاور سے آنے والی ٹرینوں کی تلاشی لی گئی، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف بدین میں جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ فضا کشمیر بنے گا پاکستان، ٹوٹ کے رہے گا ہندوستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سکھر کے سول اسپتال میں سہولیات نہ ہونے کے باعث دماغ کے مریض میں مبتلا بچے کا علاج ناممکن ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے والدین کو نجی اسپتال یا کراچی لے کر جانے کا مشورہ دے دیا۔ پشاور کے نمک منڈی بازار میں روایتی پکوان انتہائی سادہ انداز میں تیار کیے جاتے ہیں۔ ان کا ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ گرما گرم اور لذیذ باربیکیو کی خوشبو شہریوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ خوبصورت وادی سوات میں پاکستان کی سب سے بڑی آبشار موجود ہے۔ 400 فٹ کی بلندی سے گرتا شفاف پانی دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ اور ایف سی اور حساس اداروں نے یورپ میں کارروائی کرتے ہوئے محرم الحرام میں ممکنہ دہشت گردی کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ فورسز نے خودکش جیکٹس سمیت بھاری تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کر لیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ وزیرآباد میں بین المذاہب ہم آہنگی برائے امن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام استحکام پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروفیسر حافظ محمد زبیر حنیف جماعتی کی قیادت میں ریلی گئی۔ ریلی مکی مسجد جی ٹی روڈ سے شروع ہوئی، جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی اللہ والا چوک پہنچی۔ اس موقع پر شہباز سرور بھٹی اور اس کے علاوہ چودھری عبدالوحید اور علی زرگر، حاجی محمد فیاض، محمد حسین اور مسیحی رہنما اشفاق سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین کا یہ کہنا تھا کہ بھارتی جنگی جنون کشمیر میں ہونے والے انسانیت سوز مظالم سے اقوام عالم کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ پاکستانی قوم کا بچہ بچہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دفاع وطن کے لیے تیار ہے۔ امن کی خواہش کو کمزوری سمجھنے والے ہوش کے ناخن لیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈین فلموں، ڈراموں سمیت تمام بھارتی مصنوعات پر پابندی عائد کی جائے۔
مری میں محرم الحرام کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کے زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں عوامی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کے زیر صدارت اجلاس جناح ہال میں ہوا اور ڈی پی او مری نے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اجلاس میں تمام سرکاری اداروں کے اہلکاروں سمیت عوامی نمائندوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ محرم الحرام کے جلوسوں کے راستوں پر سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں، تاہم کسی بھی ممکنہ ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے جوان بھی تیار ہیں۔ اجلاس میں عوامی نمائندوں نے بھی اس امر کا اظہار کیا کہ مری ایک پرامن سیاحتی مقام ہے اور ماضی کی طرح محرم میں بھی اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ اجلاس میں اس امر کو یقینی بنایا گیا کہ مری اور گرد و نواح سے نکالے جانے والے روایتی جلوسوں کے مقررہ اوقات کی سختی سے پابندی کی جائے گی۔ اس موقع پر شرکاء نے انتظامیہ کو امن و امان کے قیام میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ لیا میں محرم الحرام کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کے بارے میں میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ دی گئی۔ ڈی پی او نے کہا کہ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے ترتیب شدہ پلان کو مزید بہتر بنانے کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ لیا میں ڈی پی او کیپٹن محمد علی ضیاء اور ڈی سی او لیا سید واجد علی شاہ نے مشترکہ میڈیا پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے سب ملازمین کی محرم الحرام کے دنوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جدید کیمروں اور جدید آلات سے آراستہ پولیس وین بھی جلوس کی نگرانی کرنے کے لیے دستیاب ہوگی، جس کا رابطہ کنٹرول روم سے براہ راست ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ڈرون کیمروں سے بھی مدد لی جائے گی۔ ڈی سی او لیا سید واجد علی شاہ نے بریفنگ میں بتایا کہ محرم الحرام کے تمام جلوسوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے 11 22 اور سول ڈیفنس کے اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ منڈی بہاؤدین میں محرم الحرام کے پیش نظر ڈی پی او عمر سلامت کی قیادت میں پولیس دستوں کا فلیگ مارچ کیا گیا۔ منڈی بہاؤدین میں محرم الحرام کے حوالے سے پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے شہر میں فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ ضلع کمپلیکس سے شروع ہو کر جیل روڈ، صدر بازار اور تھانہ روڈ سے ہوتا ہوا پولیس لائن پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ کی قیادت ڈی پی او عمر سلامت نے کی۔ فلیگ مارچ میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سید ذوالفقار گیلانی، تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز، ایلیٹ فورس اور ٹریفک پولیس افسران نے فلیگ مارچ میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او عمر سلامت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ محرم الحرام میں امن و امان کے لیے 1500 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ علاوہ ازیں پرائیویٹ گارڈز کو بھی ٹریننگ دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محرم الحرام کے جلوسوں کے راستوں میں کسی غیر متعلقہ شخص کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پولیس پوری طرح چوکس اور مستعد ہے اور ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ رائفل جلسے کی کامیابی کے بعد ملتان میں جشن کا سماں ہے۔ کپتان کے کھلاڑیوں نے بھنگڑے ڈالے، مٹھائیاں تقسیم کی اور اپنے لیڈر کی کامیابی کے لیے دعائیں کی۔ رائفل جلسے کی کامیابی پر ملتان میں کپتان کے کھلاڑی پھولے نہیں سما رہے۔ مقامی رہنما وسیم خان بادوزئی کے ڈیرے پر کامیاب جلسے کے انعقاد پر جشن منایا گیا، جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کارکنوں نے عمران خان اور پارٹی کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ کھلاڑیوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ کپتان کے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ عمران خان انہیں جب بھی اور جہاں بھی بلائیں گے وہ اپنے لیڈر کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ محرم کے بعد بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچیں گے اور تب تک وہاں رہیں گے جب تک طرف سیاستدانوں کا احتساب نہیں ہوتا۔ سرگودا کے نواحی علاقہ ساہیوال میں محنت کش کا بیٹا پولیو کے باعث ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ باپ 3 سال سے بیٹے کو لے کر مختلف اسپتالوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔
सरगोदा के नवाही इलाके के रहायशी मेहनत कश मोहम्मद नजीर का 3 साला बेटा मोहम्मद बिलाल पोलियो के मर्ज में मुब्तला है। गमज़दा बाप का कहना है कि दिन रात मेहनत मजदूरी करके घरेलू अखराजात पूरे करना भी मुश्किल है। बेटे के इलाज के लिए भारी रकम का बंदोबस्त उसके बस में नहीं। चिल्ड्रन अस्पताल वाले मैं 5-4 चक्कर लवाए ने, उन्होंने भी मैंने यही किया कि तेरे सरगोदे दे विच तैनूं 10 चला गया इलाज उस इलाज के बावजूद मैं फिर जनाह अस्पताल दे विच लै गया। जनाह अस्पताल वाले मैंने यही किया कि तू मतलब बह जा बाबा, मैं नहीं बह सका, बच्चे ने मेरे छोटे छोटे। गमज़दा बाप ने मुखय्यर हजरात और अरबाब इख्तियार से अपील की है कि उसके बेटे के इलाज के लिए इक़दाम करें ताकि वो भी अपने पाँव पर खड़े होकर जिंदगी गुजार सके। चिश्तिया में इंसानी सेहत से खेलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुजरे सेहत घी बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। चिश्तिया में असिस्टेंट कमिश्नर अरशद महमूद सिंधु और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हाफिज तारिक जावेद ने काजीवाला रोड पर कायम मुजरे सेहत घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान इंकिशाफ हुआ कि फैक्ट्री में मुर्गियों के पंजों और चर्बी अंतरियों से घी तैयार किया जाता है। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में खाम माल और मशीनरी कब्जे में ले ली है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। थाना सिटी पुलिस ने महकमा सेहत की दरख्वास्त पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जतोई में गैर कानूनी ऑयल एजेंसी में रिफिलिंग के दौरान ऑयल टैंकर में आग लग गई। ऑयल टैंकर का ड्राइवर और एजेंसी का मालिक जख्मी हो गया, जबकि आतिशबाजी के बायस करीबी मार्केट की 7 दुकानें जल गईं। जतोई के इलाके डंबरवाला में गैर कानूनी ऑयल एजेंसी में तेल की रिफिलिंग के दौरान सिगरेट जलाने के बायस ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। आग ने ऑयल टैंकर के अलावा करीबी मार्केट की कई दुकानों को भी लपेट में ले लिया। वाक़े की इत्तला रेस्क्यू 112 को दी गई। रेस्क्यू और मुकामी लोगों ने अपनी मदद आग के तहत 2 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक आतिशबाजी के बायस 5 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं, जबकि 2 दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू के मुताबिक वाक़े में ऑयल टैंकर का ड्राइवर और एजेंसी का मालिक शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टोबा टेक सिंह में इंसदादे डेंगू मुहिम के सिलसिले में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने राजाना रोड पर कार्रवाई करके मुतादिद टायर शॉप्स को सील कर दिया। मुतादिद को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से मुख्तलिफ टायर शॉप्स, कबाड़ खानों और नर्सरियों पर छापे मारे गए। खुली फजा में टायर रखने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। नागरा पुल पर डेंगू लार्वा बरामद होने पर टायर शॉप सील कर दी गई। डीओ माहौलियात शमीम खान का कहना है कि सितंबर और अक्टूबर डेंगू की फजाइश के लिए मौजूद तरीन महीने हैं, इसलिए महकमा की जानिब से चेकिंग का सिलसिला तेज कर दिया गया है। डेंगू खतरे के पेश नजर कहीं भी साफ पानी खड़ा न होने दें। दूसरी जानब महकमा माहौलियात की दरख्वास्त पर डेंगू लार्वा बरामद होने पर दुकानदार के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद नवाज ने तहसील कोर्ट्स पीर महल का दौरा किया और वकला को दरपेश मसाइल की तरजीही बुनियादों पर हल की यकीन दहानी करवाई। जिले में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद नवाज ने तहसील कोर्ट्स पीर महल का दौरा किया। इस मौके पर एक तकरीब का भी इनाकात किया गया, जिसमें चौधरी मोहम्मद नवाज, सीनियर सिविल जज सजावल खान समेत दीगर ने तकरीब के शुरका से खिताब किया। उन्होंने कहा कि शहर में तहसील कोर्ट्स का क़याम अमल में लाने की वजह से साइलिन को फौरी सस्ता इंसाफ होने के साथ साथ सफरी मुश्किलात भी खत्म हो गई हैं। उनका ये कहना था कि मुख्तसर अरसे में बार काउंसिल का रजिस्टर्ड होना पीर महल की वकला बिरादरी की काविशों का वाज़ेह सबूत है। इस मौके पर वकला ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को अपने मसाइल से भी आगाह किया। मरी आर्ट्स काउंसिल में हुब्बुल वतनी के उन्वान से सेमिनार का इनाकात किया गया, जिसमें इस्लाही ड्रामा भी पेश किया गया। मरी आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम इस्लाही स्टेज ड्रामा हम एक हैं के इन्वान से पेश किया गया। ड्रामा देखने वालों में मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर तुलबा ने हुब्बुल वतनी से भरपूर ड्रामा शानदार किरदारों को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश किया। बाद अज़ां सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम ढाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है।
ایسے میں پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ ویتنام میں ہونے والی ایشین بیچ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے ریسلر کے گوجرانوالہ پہنچنے پر جشن کا اہتمام کیا گیا۔ مٹھائیاں تقسیم ہوئیں اور مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ ویتنام میں ہونے والی 5ویں ایشین بیچ گیمز میں گوجرانوالہ کے انٹرنیشنل ریسلر انعام پہلوان کے گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ نامور پہلوان کے گھر پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ گوجرانوالہ کے انٹرنیشنل ریسلر محمد انعام نے ویتنام میں ہونے والے 5ویں ایشین بیچ مقابلوں کے فائنل میں 90 کلو گرام کیٹیگری میں ایران کے پہلوان کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ شہریوں نے پاکستان کا نام روشن کرنے والے پہلوان کو خراج تحسین پیش کیا۔ لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی اور گھر کے باہر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن اور ملتان پریس کلب کے زیر اہتمام چوک نواں شہر سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے صدر طاہر چودھری اور صدر پریس کلب شکیل انجم نے کی۔ اس موقع پر کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن نے فیصلہ کیا کہ آج سے انڈین چینلز مکمل طور پر بند کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے اور ہم اپنے وطن کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ صدر پریس کلب شکیل انجم کا یہ کہنا تھا کہ پوری قوم کی طرح صحافی برادری بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ اگر بھارت نے حملے کا سوچا بھی تو دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں جبکہ بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ حیدرآباد میں محرم الحرام کی آمد سے قبل سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے کے لیے رینجرز نے ریلوے اسٹیشنز پر پنجاب اور پشاور سے آنے والی ٹرینوں کی تلاشی لی، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ محرم الحرام کی آمد سے قبل سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر حیدرآباد میں رینجرز کی بھاری نفری نے ریلوے اسٹیشن کو حصار میں لے لیا۔ پنجاب اور پشاور سے آنے والی مسافر ٹرینوں کی تلاشی لی گئی، جبکہ مسافروں کو کوائف اور سامان کی چیکنگ بھی کی گئی۔ اس موقع پر ریلوے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی، تاہم آپریشن کے دوران کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ ذرائع کے مطابق رینجرز کی جانب سے آپریشن محرم الحرام کے موقع پر پنجاب اور پشاور سے دہشت گردوں کی ممکنہ نقل و حرکت کی اطلاع پر کیا گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ مزید سخت کر دی گئی ہے۔ صوبہ سندھ سے مزید خبریں بھی شامل کریں گے اور بات کریں گے جیبکاباد کی۔ جیبکاباد میں بھارتی جارحیت کے خلاف مختلف مکاتب فکر کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ بھارتی وزیر اعظم کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ جیبکاباد میں بھارتی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء نے مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب ہوا ہے اور نہ ہی اسے کبھی کامیاب ہونے دیں گے۔ پاکستان کا بچہ بچہ اپنے وطن عزیز کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ مودی سرکار کو کارگل سمیت ماضی کی دیگر جنگیں یاد رکھنی چاہیے۔ ریلی کے شرکاء قدم بڑھاؤ، پاک فوج ہم تمہارے ساتھ ہیں، پاکستان زندہ باد کے پرجوش نعرے لگاتے رہے۔ محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی جہاں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہیں علم، تعزیوں اور دیگر زیارات کی بھی تیاری شروع کی جاتی ہے۔ ملک بھر کی طرح جام شوروں میں بھی محرم الحرام کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ مختلف مقامات پر پرانے علم اتار کر نئے علم نصب کیے جا رہے ہیں۔ تاریخی مرکزی امام بارگاہ انجمن حیدری محلہ علی مراد نیا گوٹ حیدرآباد سے آئے ہوئے کاریگر 18 عمارت تاجیہ اور دیگر شبیہ بنانے میں مصروف ہیں۔ حیدرآباد سے آئے کاریگروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جدی پشتی انڈیا سے تازیے بناتے چلے آ رہے ہیں اور یہاں 18 منزلہ شبیہ تازیہ بنا رہے ہیں۔
जो यकुम मुहर्रम अल हराम तक तैयार हो जाएगा। कारीगरों का ये कहना था कि वो पहले मरहले में बांस से शबिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उस पर मुख्तलिफ किस्म की चमकती पीनों से ज़ियारत तैयार करते हैं, जिस पर 1 लाख रुपए से ज़ायद लागत आती है। ज़ियारत तकरीबन 1 माह में मुकम्मल होती है, जिसकी तैयारी में 10 कारीगर फ़राइज़ अंजाम देते हैं। सक्खर के सिविल अस्पताल में सहूलियात ना होने के बायस दिमाग के मर्ज में मुब्तला बच्चे का इलाज नामुमकिन हो गया है। डॉक्टरों ने वालिदैन को निजी अस्पताल या कराची ले जाने के लिए मशवरा दे दिया है। सक्खर में नुमाइश चुरंगी की रिहायशी खातून अपने 1 साला फयाज अली के इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुकी है। कमसिन बच्चा फयाज अली के दिमाग में रसौली और दिमाग का साइज बढ़ जाने की वजह से सख्त अजियत में मुब्तला है। माँ और नानी बच्चे को लेकर सक्खर प्रेस क्लब पहुंच गईं। गमज़दा माँ का ये कहना था कि उसका बेटा गुज़िश्ता 1 साल से दिमाग के मर्ज में मुब्तला है। उसका शौहर मेहनत मजदूरी करता है, जिससे बमुश्किल घरेलू अखराजात पूरे होते हैं। खातून ने बताया कि कई बार इलाज की गरज से सिविल अस्पताल गए, लेकिन डॉक्टरों की जानिब से सहूलियात ना होने के बायस निजी अस्पताल कराची ले जाने का मशवरा दिया गया है। फयाज अली की वालिद ने कहा कि अरबाब इख्तियार से मदद की अपील की है। घोटकी में भारतीय जारहियत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें हिंदू बरादरी भी शरीक हुई। इस मौके पर पाक फौज के हक में जबरदस्त नारेबाजी की गई। घोटकी में पाक फौज और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मीरपुर, माथेलू और ढरकी में रैली निकाली गई। रैली में हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक अफराद ने कश्मीरियों के हक और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर उनका ये कहना था कि हक खुद इरादियत की जंग में कश्मीरियों के साथ हैं और उनको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। भारतीय इंतहा पसंद मोदी पाकिस्तान को धमकियां देना बंद कर दे। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखा तो हमारी फौज उसकी आंखें निकाल लेंगे। पाकिस्तानी वो कौम है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह जानती है। भारतीय जारहियत के खिलाफ बदीन में जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, टूट के रहेगा हिंदुस्तान के नारों से गूंज उठी। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के नापाक अज़ाइम के खिलाफ बदीन में जमाते इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने अल्लाह वाला चौक से प्रेस क्लब तक पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। शुरका ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती भी किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम और फौज हमा वक्त अपने वतन की हिफाजत के लिए मैदान में है और नौजवानों की बड़ी तादाद भी अपने वतन पर मर मिटने के लिए तैयार है। पूरे पाकिस्तान जी अवाम के बेदार कयो वने ऐं दिफाए वतन जे खातिर पाक फौज जे शाना वशाना थी। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी सरकार की गीदर भपकियों से पाकिस्तानी डरने वाले नहीं हैं। भारत को कश्मीर के निहत्थे मुसलमानों के हर जख्म का हिसाब देना होगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को आजादी से नहीं रोक सकती। इस मौके पर इस्लामी जमीयत तुलबा बदीन, जमीयत तुलबा अरबिया, JUI यूथ विंग और अकलियती बिरादरी के रहनुमा डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपने साथियों के साथ शिरकत की। सिंध भर में गुटखे पर पाबंदी सिंध हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। मुंह के कैंसर का सबब बनने वाला गुटखा जानवरों के खून और चूने से तैयार किया जाता है। कराची समेत हैदराबाद और अंदरून सिंध में इंसानी सेहत के लिए जहर समझे जाने वाले गुटखे की फरोख्त का अमल सरेआम जारी है। गुटखे की फरोख्त पर गुज़िश्ता रोज सिंध काबीना की जानिब से सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। गुटखा उसके लिए हुआ है, ये तो कानून है, वैसे ही कानून मौजूद है, अब उसको गुटखे की तैयारी और बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला भी किया गया है, मगर इसके बावजूद भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुटखा आसानी से दस्तयाब है।
गुटखा मुंह के कैंसर और दीगर जानलेवा बीमारियों का बाइस बनता है। गुटखे की तैयारी में घटिया क्वालिटी का चूना, जानवरों का खून और घटिया क्वालिटी की छालिया और मखसूस किस्म का केमिकल भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसे एक दफा इस्तेमाल करने वाला शख्स दूसरी मर्तबा भी जरूर इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो इस कातिल का शिकार होकर आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चला जाता है। गुटखा इंतहाई गंदी जगह पर तैयार किया जाता है। सिंध काबीना ने गुटखे और मेनपुरी पर पाबंदी आयद करते हुए इस पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत तो कर दी, लेकिन देखना यह है कि नए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के इस इकदाम से ये जहर कातिल अमलन भी खत्म होगा या फिर पहले की तरह इसकी फरोख्त पुलिस की सरपरस्ती करते हुए जिला चेयरमैन मोहम्मद कासिम, वाइस चेयरमैन अतीक शाह समेत दीगर मेंबरान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब आवाम की पार्टी है जो हर मुश्किल में गरीब आवाम का साथ देती है। डिस्ट्रिक्ट मेंबर तहसील नसीराबाद के आशिक अली और नसीराबाद प्रेस क्लब पर कब्जा खत्म कराने का और आला अफसरान नोटिस लेकर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। इजलास में मौजूद एक खातून ने कहा कि सजावल जुनेजो टाउन खत्म किया गया, जिसकी वजह से वहां के मुलाजमीन को तनख्वाहें भी नहीं मिल रही, लिहाजा इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। जिस पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोहम्मद कासिम ने कहा कि नसीराबाद के मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाएंगे। खैरपुर जामिया शाह अब्दुल लतीफ में मुकामी प्रेस क्लब की जानिब से कुतुब मेले का इनाकात किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी गई कुतुब रखी गई थी। कुतुब मेले में शहरियों समेत तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेले के इनाकात को सराहते हुए शुरका का ये कहना था कि कुतुब मेले का इनाकात अच्छा इक़दाम है। किताब सबसे की बेहतरीन दोस्त है। किताबें मुताले करने के साथ साथ मालूमात फ्राहम करने का बेहतरीन जरिया है। हम जदीद दौर में कुतुब से दूर होते जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वो अपने घरों में लाइब्रेरी कायम करें। इस मौके पर तुलबा का ये कहना था कि महंगाई के इस दौर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी गई किताबों की कीमतें कुव्वते खरीद से बाहर हैं। सस्ती किताबों के लिए स्टॉल्स लगाए जाएं ताकि तलबा भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। खैबर पख्तूनख्वा की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पेशावर की। पेशावर के नमक मंडी बाजार में रवायती पकवान इंतहाई सादा अंदाज में तैयार किए जाते हैं और उसके बावजूद उनका जायका लाजवाब होता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावरी खानों की मशहूर फूड स्ट्रीट नमक मंडी बाजार। यहाँ तैयार करदा सादा खाने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी मशहूर हैं। नमक मंडी के खानों में मटन टिक्का, मटन कढ़ाई और दमपोख्त समेत दीगर रिवायती पकवान शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें मसाले कम इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बावजूद जायका ऐसा कि लोग उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएं। हम तकरीबन 5 किस्म आइटम बनाते हैं। दमपोख्त, मटन टिक्का, मटन कढ़ाई, चिकन टिक्का, चिकन कढ़ाई और स्टीम रोस्ट बनाते हैं। साबुत दुम्बे पकाते हैं। साबुत दुम्बे के दरमियान चावल पकाते हैं। और यहाँ के खाना जो है फ्रेश खाना है, फ्रेश गोश्त है। इसमें तकरीबन आधा घंटा लग जाती है पकाने में और इसमें सिर्फ नमक होता है, मसाले नहीं होता है। ये सादा खाना है। खानों के शौकीन अफराद नमक मंडी का रुख ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं। यही वजह है कि यहाँ दीगर शहरों से आने वालों का तांता बंधा रहता है। नमक मंडी जो है वो हम आते रहते हैं। स्पेशली अगर हमें कोई काम भी होता है, पहले हम नमक मंडी आते हैं, यहाँ से यहाँ का खाना खा के फिर हम अपने काम करते हैं। अक्सर हम स्पेशल नमक मंडी आते हैं खाना खाने के लिए भी, इस्लामाबाद से। स्पेशली हम यहाँ पे दमपुख्त खाने आते हैं। यहाँ के वैसे रिवायती खाने सारे ही मशहूर हैं, अच्छे हैं, लेकिन हम स्पेशली यहाँ पे दमपुख्त खाने के लिए आते हैं। शाम ढलते ही नमक मंडी की रौनकें बढ़ जाती है। गर्मा गर्म और लजीज बारबेक्यू की खुशबू शहरियों को अपनी तरफ खींच लाती है। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ खालिद उर रहमान, वक्त न्यूज़, पेशावर। और अब कुछ बात करेंगे खूबसूरती के हवाले से। खूबसूरत वादिये सवात में पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबशार मौजूद है। 400 फीट की बुलंदी से गिरता शफाफ पानी देखने वालों पर सहर तारी कर देता है। जारोखू आबशार की दिलकशी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में।
दिलों को छू लेने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा झरना वादी सवात में मौजूद है। सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी और घने जंगलात के बीचों बीच ये चारगू आबशार मैंगोरा शहर से 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जो सयाहों के लिए पसंदीदा मकाम भी है। 400 फुट की बुलंदी से गिरता ये झरना मौसम सरमा में पानी की कमी से 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। करीबी शाहरा से आबशार तक सड़क न होने के बावजूद सियाह इसकी दिलकशी देखने के लिए 5 किलोमीटर का फासला पैदल तय करके यहाँ पहुँचे हैं। आबशार तक आने वाले रास्ते में सियाह हसीन वादी और कुदरती नज़ारों को देखकर भी खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। सियाहों का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर ज़हनी सुकून मिलता है। स्वाद में मैं आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक आबशार का अभी दरियाफ्त हुई है, तो मैं उसको देखने के लिए वहाँ से आवाज़ से यहाँ पे आया। लेकिन ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, उसमें ये है कि जो रास्ता है ना वो रास्ता बहुत लंबा है, पैदल का रास्ता है लेकिन रास्ता दुश्वार है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सवात तो वैसे भी बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन ये आबशार देख के ये तो दिल नहीं चाह रहा कि मैं वापस जाऊँ यहाँ से। सवात में अमन व अमान के कयाम के बाद सियाहती सरगर्मियों में नुमायां इजाफा हुआ है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ, वक्त न्यूज, सवात। अब कुछ खबरें शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। भारतीय इश्तियाल अंग्रेजी के खिलाफ बलोचिस्तान भर में मुजाहरों और एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी है। मुजाहरों में भारतीय वज़ीर आज़म के पुतले भी नजर आतिश किए गए। भारतीय जारहियत और मोदी सरकार की इश्तियाल अंग्रेजी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम शदीद गम और गुस्से में मुब्तला है। बलोच अवाम ने अपने एहतजाज के जरिए भारतीय बयानात का मुंहतोड़ जवाब दिया है। बलोचिस्तान में शहरियों, स्कूलों और दीनी मदारिस के तुलबा भारतीय जारहियत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हम भारतीय जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुल्क की हिफाजत करना जानता है। मुजाहिरीन ने मोदी के पुतले भी नजरियातिश किए। एफसी और हसास इदारों की जानिब से यूरोप में कार्रवाई करते हुए मुहर्रमुल हराम में मुमकिना दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। फोर्सेस ने खुदकुश जैकेट समेत भारी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया। एफसी और हसास इदारे की जानिब से यूरोप के इलाके गवाल इस्माइल जई में कार्रवाई की गई। खुफिया इतला पर की गई कार्रवाई में भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। तर्जुमान एफसी के मुताबिक बरामद होने वाले असलहे में खुदकुश जैकेट, आरपीजी, 2 SMGs, 60 mm ऑटोमेटिक गन, 3 बारूदी सुरंगें, 48 बम और 25 IEDs शामिल हैं। तर्जुमान एफसी के मुताबिक असलहा कलदम तंजीम के दहशतगर्दों ने जखीरा कर रखा था, जिसे सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल किया जाना था। रुकन सूबाई असम्बली मीर अजहर खान खोसा का यह कहना है कि अगर दुश्मन ने हम पर हमला किया तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। जाफराबाद में सेकंड लेफ्टिनेंट अयास अहमद खोसा की वफात पर रुकन सूबाई असम्बली मीर अजहर खान खोसा ने उनके अहले खाना से ताज़ियत की और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मीर अजहर खान खोसा ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले को मुंह की खाना पड़ेगी। उनका कहना था कि अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया तो ये मोदी को डुबो देगा। मीर अजहर खान खोसा ने कहा कि मोदी बलोचिस्तान के हवाले से बात ना करे, क्योंकि बलोच कौम भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पाक अफवाज के साथ तैयार हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलोचिस्तान की जानिब से कोयटा समेत सूबे भर में मुतालिबात के हक में दूसरे रोज भी ओपीडीज का मुकम्मल बाइकआउट जारी है। ओपीडीज की बंदिश के बायस मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से सर्विस स्ट्रक्चर, तनख्वाहों में इजाफे और 7 अप्रैल को यंग डॉक्टर्स की रैली पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी के मुतालिबात मंजूर न होने पर दूसरे रोज भी ओपीडीज का बाइकआउट किया गया। यंग डॉक्टर्स के बाइकआउट की वजह से कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरीजों का कहना है कि अस्पतालों में सहूलियात का पहले ही फुकदान है, रहती कसर डॉक्टर्स और हुकूमत की खींचातानी ने निकाल दी है। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स ने मुतालिबात पूरे न होने की सूरत में ओपीडीज के बाइकआउट को 1 हफ्ते तक जारी रखने का ऐलान कर दिया है, जबकि 1 हफ्ते के बाद हड़ताल को मजीद सख्त करने का इंदिया भी दिया गया। डेरा मुराद जमाली में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन नसीराबाद के ज़ेरे एहतमाम पंजुम हश्तुम बोर्ड और रेगुलेशन अथॉरिटी बिल 2015 के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। डेरा मुराद जमाली में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन नसीराबाद के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली गई। रैली पब्लिक स्कूल से निकाली गई जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब के सामने पहुंची, जहां एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर महकमा तालीम के खिलाफ नारे दर्ज किए गए थे। इस मौके पर रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत में शामिल चंद अफराद को खुश करने के लिए बलूचिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह करने की साजिश की जा रही है, जिसे वो किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पंजम और हश्तम जमातों को वोट से मुंसलिक करने से नकल कल्चर को फ़रोग मिलेगा। उनका यह कहना था कि बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट अज खुद नोटिस लें। डेरा मुराद जमाली में ऊंच पावर प्लांट की जानिब से 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें दूर दराज से मरीजों ने शिरकत की। इस मौके पर ऊंच पावर प्लांट के डायरेक्टर का यह कहना था कि ऊंच पावर प्लांट डेरा मुराद जमाली के अवाम के लिए तालीम और खेल के साथ सेहत की सहूलियात फ्राहम करने में भी तमाम तर सहूलियात फ्राहम कर रहा है। गुज़िश्ता साल भी सेहत के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया था। फ्री मेडिकल कैंप में यहाँ की आवाम को बेनाई जैसी नेमत के हसूल के लिए कराची और गुम्बट के माहिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मदद ली जा रही है। 2 रोज़ा फ्री आई मेडिकल कैंप में हमारा टारगेट 1500 के करीब अफराद को तिब्बी सहूलियात फ्राहम करना था, मगर पहले दिन ही आज 1500 से ज़ायद अफराद मेडिकल कैंप आए हैं, जिनका चेकअप किया